Welcome viewers. Today I am going to introduce journal chapter. Journal chapter is most important chapter in accountancy subject. In this video, I will discuss some important terms such as double entry system, debit credit, business, transactions and classification of accounts like personal transactions or accounts, impersonal transactions or accounts, real transactions and nominal transactions and accounts or accounts. First of all, the first term is double entry system. As we know, double entry system is an accounting system to record business transactions. Double entry system, a complete accounting system, systematic accounting system, correct accounting system, worldwide popular accounting system, and best system for business having profit earning objective. Double entry system includes two important terms, that is business and transactions. As already discussed, business means or business defined as their activities by experts and even inexperienced persons. The important activities which are part or included in business is production activities, purchase and sale activities, service render activities, or in business term also represented as industrial activities, trading activities and commercial service render activities. Second term is accountancy. Second term is transactions. लेन देन किसे कहते हैं? तो there must be to receive or to give, and if to receive and to give at same time is called as cash transactions. If it is at different time is called as credit transactions. And most important point is either to receive or to give or both must be at present. Then transactions become transaction. जैसा कि हम जानते हैं, दोहरे लिखे प्रणाली में दो महत्वपूर्ण शब्द हमारे पास आया है, एक है बिजनेस और दूसरा है लेन देन। बिजनेस का अर्थ पहले से ही बतलाया हुआ है, चाहे हम उत्पादन का काम करें, चाहे क्रय विक्रय का काम करें, चाहे सेवा प्रदान करने वाला काम करें, यह सब बिजनेस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और लेन देन के लिए बहुत जरूरी है कि लेना भी होना चाहिए और देना भी होना चाहिए। लेने और देने का एक समय भी हो सकता है जिसे हम नगद लेन देन कहते हैं, अलग अलग समय है तो इसे हम उधार लेन देन कहते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है कि लेन देन के दिन या आज प्रेजेंट में जरूर कुछ होना चाहिए, या लेना या देना या दोनों भी हो सकता है। इस तरीके से अब हम लेन देन शब्द को जरा देखें तो उसमें लेना भी है और देना भी है। लेने और देने को जरा गौर करके देखें, बोथ आर ऑफ ऑपोजिट नेचर, विपरीत दिशा वाली शब्द है, बातें हैं। अर्थात इन्हीं कारणों से डबल एंट्री सिस्टम में दो अलग अलग स्थान बतलाए गए हैं लेन देनों को लिखने के लिए, और इसी कारण से इस सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। बिकॉज ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन टू प्लेसेस एंड दैट प्लेसेस आर डेबिट एंड क्रेडिट। तो नेक्स्ट टर्म इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो सिंपली as defined, as discussed, debit and credit are two places to record business transactions. Debit relates with left hand side of accounting place and credit always related with right hand side of accounting place. किसी भी accounting place में अगर हम दो पार्ट में खाते को लेन देन को बांटते हैं, अकाउंट को बांटते हैं, तो बाईं तरफ हमारा डेबिट के नाम से जाना जाता है, दाहिनी तरफ क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। अब हमारे सामने में समस्या है हाउ टू रिकॉर्ड इन डेबिट एंड क्रेडिट प्लेसेस और साइड। फॉर दिस वेरी रीजन और पर्पस ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड, और इन अदर वर्ड्स और इन जनरल वर्ड्स ऑल्सो वी कैन से अकाउंट्स आर क्लासिफाइड। नंबर वन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन और अकाउंट्स इज पर्सनल ट्रांजेक्शंस, नंबर टू इज इम्पर्सनल ट्रांजेक्शंस। पहला हमारा खाता का रूप है, लेन देन का रूप है
व्यक्तिगत खाता या लेन देन, और दूसरा रूप है अव्यक्तिगत खाता या लेन देन. नाउ द फर्स्ट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट्स और पर्सनल ट्रांजैक्शंस. In general, personal transactions means all such transactions represents persons or name of persons. But according to double entry system, transactions includes representation of three names. Number one, name of person. Number two, name of business. And number three, name of institution. जैसा कि हम जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम में लेन देनों को दो रूपों में बांटा गया है. पहला है व्यक्तिगत लेन देन या व्यक्तिगत खाता. व्यक्तिगत खाते का सामान्य रूप में हम वैसे खाते या लेन देनों से समझते हैं जिसका संबंध व्यक्ति या व्यक्ति के नाम से आता है. लेकिन वास्तव में हमें डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट्स या सभी का मतलब जानना है. तो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, दोहरे लेखा प्रणाली के अनुसार से व्यक्तिगत लेन देनों में हम लेन देनों के तीन नामों को शामिल करते हैं. एक है व्यक्ति का नाम होना चाहिए, दूसरा है व्यवसाय का भी नाम हो सकता है, तीसरा है संस्था का भी नाम हो सकता है. अब संस्था का क्या मतलब है? नाम से ही क्लियर है. इंस्टीट्यूशन मीन्स एनी क्रिएशन बाय सोसाइटी एंड फॉर सोसाइटी. कोई भी निर्माण जो समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है और समाज के लोगों के लिए किया जाता है, हम सभी को संस्था के नाम से जानते हैं. जैसे सोसाइटी को अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए स्कूल और कॉलेजेस की जरूरत पड़ती है, तो सोसाइटी के द्वारा ही स्कूल और कॉलेजेस का क्रिएशन किया जाता है. नेम ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, क्लब, सभा, सोसाइटी, मंदिर, मस्जिद, all are creation of society and for society. That's why included in name of institutions. इसी तरीके से व्यक्तिगत खाते की बात करते हैं, व्यक्ति के नाम की बात करते हैं, तो व्यक्तियों के नाम में भी कोई यहाँ पर निश्चित दायरा नहीं है. अनलिमिट या सीमित दायरा है. वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है. बस इंपॉर्टेंट ये है डबल एंट्री सिस्टम में कि हमारे लेन देन में किसी भी धर्म, जाति या स्थान के व्यक्ति का नाम होना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल के रूप में राम, श्याम, घनश्याम, जॉन, जनार्दन, सीता, रीता, गीता, कुछ भी हो सकता है. ऑल आर नेम ऑफ पर्सन्स. नेक्स्ट इज नेम ऑफ बिजनेस. व्यवसाय का नाम. व्यवसाय के नाम में भी कोई लिमिटेशन नहीं है. इंपॉर्टेंट है जस्ट नेम ऑफ बिजनेस. वो बिजनेस चाहे प्रोडक्शन एक्टिविटीज का इन्वॉल्वमेंट में हो, चाहे परचेज सेल का एक्टिविटीज में हो, चाहे सर्विस रेंडर एक्टिविटीज में हो. वह बिजनेस चाहे गली मोहल्ले या छोटे स्थानों पर हो, चाहे लार्ज स्केल का बड़े स्थान पर, बड़े शहर में या विदेशों में स्थापित हो. महत्वपूर्ण यह है कि व्यवसाय का नाम आना चाहिए. चाहे एक छोटी से छोटी दुकान, छोटू जनरल स्टोर आप कह सकते हैं, गली मोहल्ले की दुकान, या बड़े बड़े शहर या मेन रोड की दुकानों को आप किसी भी दुकान के नाम को ले सकते हैं इसके अंतर्गत. जैसे खंडेलवाल बुक डिपो हो गया, या रिलायंस मार्ट हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, या कार उद्योग जहां की कार प्रोडक्शन होता है, मारुति उद्योग लिमिटेड कह सकते हैं. जहां पर कि कार का सेल एंड सर्विस पॉइंट है, उसे हम मारुति सेल्स एंड सर्विस सेंटर कह सकते हैं. ऑल आर नेम ऑफ बिजनेस एंड इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट्स. सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन और अकाउंट इज इम्पर्सनल ट्रांजेक्शंस और अकाउंट्स. Im means not. It means not related with the person or name of person or business or institutions. All are included in impersonal accounts. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वे सभी लेन देन जिसमें कि व्यक्ति, व्यवसाय या संस्था का नाम नहीं आता है, हम अव्यक्तिगत खाते में शामिल करते हैं. एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि पेन है, बुक्स है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, गुड्स है, कैश है, कंप्यूटर है. ये तो किसी व्यक्ति का, दुकान का, संस्था का नाम नहीं है इन जनरल. इसी तरीके से रेंट है, वेजेस है, सैलरीज है, टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, बैड डेट्स है, रिपेयर्स है, कैरेज है, फ्रेट है. इस तरीके से और भी बहुत सारे नाम. ये सब भी हमारा किसी वास्तव में कोई ये व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम और व्यवसाय के नाम से इसका कोई संबंध नहीं है.
लेकिन इन दोनों तरह के एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें तो हम इसमें भी डिवीजन कर सकते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ये ऐसी चीजों से संबंध रखता है जिसका कि निश्चित आकार है, प्रकार है, मूल्य है, पहचान है, जिसे हम रियल अकाउंट के रूप में क्लासिफाई करेंगे। मीन्स इम्पर्सनल अकाउंट्स का भी क्लासिफिकेशन हुआ है रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का क्या मीनिंग है? तो क्लियर कट है, नाम से ही क्लियर है, थिंग्स हैविंग सर्टेन शेप, साइज, कलर, टचेबिलिटी, विजिबिलिटी, ऐसा कुछ भी उसमें मेरिट है, क्वालिटी है, इट मीन्स रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो इस तरह की बातों को हम इन एग्जाम्पल से कोट कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है हमारा, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल अकाउंट, सच एज पेन, बुक्स, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। इतना ही नहीं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, थिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थिंग्स, सभी रियल अकाउंट के एग्जाम्पल के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अब इसके बाद बच जाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हम तो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग पर्सनल एंड रियल, रिमेनिंग ऑल आर नॉमिनल अकाउंट, और जस्ट वी फील इट, ऐसे ट्रांजैक्शंस को जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं, या ऐसा लेन देन जो व्यक्तिगत नहीं है और वास्तविक नहीं है, बचा सभी नॉमिनल अकाउंट में शामिल किया जाता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को छोड़ दीजिए, पर्सन, बिजनेस, इंस्टीट्यूशन के नाम और रियल थिंग्स के एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारा, ये हमारा किस अकाउंट से रिलेटेड है? तो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। ये सब नाम मात्र का खाता है। अब नॉमिनल अकाउंट्स की बातों को देखें तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस में ये रेयर है या नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन नॉमिनल नेचर के ट्रांजैक्शंस को ज्यादातर किया करता है। जैसे किसी भी बिजनेस सेंटर में हम बैठे हैं, कुछ समय के लिए ही तो पता चलता है कि वह अपने एम्प्लॉय का सैलरी दे रहा है, तो सामान कैरी करके लाया तो वेजेस या कैरेज चार्जेस पे कर रहा है, फ्रेट चार्जेस पे कर रहा है, कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहा है, जिस बिल्डिंग में बिजनेस चला रहा है उस बिल्डिंग का रेंट पे कर रहा है, एम्प्लॉय और स्टाफ की सैलरी दे रहा है। इस तरीके से ये सब न तो किसी व्यक्ति का नाम है, न दुकान का नाम है, न संस्था का नाम है, न ही कोई रियल थिंग से इसका कोई संबंध है। इसका मतलब सभी तरह के ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होते ही हैं। अल्टीमेटली या फाइनली ट्रांजैक्शंस को हम तीन रूपों में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, पर्सनल ट्रांजैक्शंस आर अकाउंट्स, नंबर 2, रियल ट्रांजैक्शंस आर अकाउंट्स, एंड नंबर 3, nominal transactions are accounts. The topic of my next video is rule to record under double entry system, or rule for debit and credit, or golden rule to record business transactions, and also their application with examples. Thank you.